در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، میں آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی شاندار حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ درود پاک کی فضیلت کے متعلق ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کریم نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، اور جس کو اللہ کریم نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور اس میں یہ دیکھیے کہ الفاظ کیا ہے کہ تمام مخلوق کی، صرف انسانوں کی نہیں، یعنی وہ فرشتہ ایسا ہے کہ جس کو تمام مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، یہ ہوگی اس کی سننے کی طاقت۔ اب ذرا اس کا نالج دیکھیں، اس کا علم دیکھیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جو کوئی شخص قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو دیکھیے وہ فرشتہ کیا کرتا ہے۔ وہ فرشتہ میرے پاس اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور فلان بن فلان نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ یہ دیکھیے سبحان اللہ، کمال کی حدیث ہے۔ اس میں ہمیں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیے کہ اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے باہر، ان کی قبر منور کے باہر ایک مسنجر ہے، پیغام پہنچانے والا، جو میرے اور آپ کے آقا کو پیغام پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ مسنجر کی پاور ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہم سب کے درود پاک سنتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ پوری اس دنیا میں جو کوئی بھی درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ وہاں مدینے میں بیٹھے بیٹھے سنتا ہے، اور صرف سنتا ہی نہیں، پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ پڑھنے والا کون ہے، اس کا نام اور اس کے والد کا نام کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ دربار کی سماعت ہے، تو پھر میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، اور میرے اور آپ کے آقا کے علم کیا ہوگا۔ بس دل سے پکارے، فریاد جو امتی کرے، حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہا کرے دل سے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ مہینہ وہ ہے جو ہم سب کے لیے بہت مبارک مہینہ ہے، اور یہ دیکھیے کہ اس مہینے سے وابستہ ہماری عقیدت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کائنات کا نقشہ بہت زیادہ عجیب و غریب تھا، اور ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، اور انسانیت سسکیاں لے رہی تھی۔ اور یہ دیکھیے کہ باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بہنوں کی کوئی عزت نہیں تھی، مائیں عزت کی مسلط پر، اور باپ کا کوئی وقار نہیں تھا، اور غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک ہوتا تھا، اور یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے، اور یہ سب کچھ پوری ڈھٹائی کے ساتھ کیا جاتا تھا، اور اس ظلم کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھانے والا بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھیے کہ وہ کیسا شفاف ترین معاشرہ تھا کہ باپ اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیتا ہے اور اس پہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے سے داد ملتی تھی۔ اور یہ دیکھیے کہ عکاس کا میلہ تھا، اس میں 3 بیٹوں نے اپنی سکی اور بوڑھی ماں کو 900 درہم میں بیچ ڈالا، اور 300 درہم انہوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ تو یہ دیکھیے کہ ایسے بدبخت لوگ بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں گے، جنہیں
माँ का भी एहसास नहीं। जब बेवाओं की सिसकियां और यतीमों की आहें और सहराए अरब में दबी हुई मासूम बच्चियों की चीखें और कैदियों की पुकार और गुलामों की सिसकियां अर्शे मौला से टकराई तो अल्लाह ताला को दुखी इंसानियत पे रहम आ गया और हजरत बीबी आमना की गोद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। फिर मेरे और आपके आका आ गए और एकदम से माहौल तब्दील हो गया। गुलामों को गुलामी से निजात मिलने लगी। ये देखे कि वो गुलाम जो आका का जूता धूप से उठा के छांव में रख देता था तो आका इस पर भी कोड़े मारता कि तूने मेरे जूते को मेरी इजाजत के बगैर क्यों छुआ, क्यों उसको धूप से छांव में रखा। और फिर उसके बाद गुलाम की क्या इज्जत हुई, ये गौर से सुनिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते हैं और जब वापस पलट के आए तो बिलाल हबशी को बुला के पूछते हैं, बिलाल तू कौन सा ऐसा नेक अमल करता है, मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनी है। सुभान अल्लाह। और देखिए कि वो माए जो मंडियों में बिकती है तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को खींच के माँ के कदमों तले रख दिया। और वो बेटियां जो पहले जिंदा दरगोर होती थी, मेरे और आपके आका मौला ने एक जुमला अरशाद फरमाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुन लो मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये देखें कि जब बेटियां जिंदा दरगोर होती थी और बाप अपने हाथों से करते थे, लेकिन अब देखिए कि अब माहौल क्या है। अगर खुदा ना खास्ता बेटी ससुराल में दुखी भी है तो बाप के दिल यहाँ पर दुखी है, करार नहीं होता, बेसुकून होता है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज का जो वजीफा मैं आपको बयान करूंगा ये खुसूसन 12 रबीउल अव्वल का है, लेकिन कोशिश करें कि इसको पूरा महीना ही करते रहें। और ये वो अमल है जो बुजुर्गाने दीन से रवायत भी है। वो कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल बहुत ही पुरनूर दिन है और इस दिन खालिक कायनात की सबसे अजीज और महबूब हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत भी है। और ये बात भी याद रखिएगा, और ये अल्लाह के मुताबिक इस दिन की अहमियत भी साल के कुछ और खास दिनों की तरह है जब अल्लाह ताला आसमानों से इंसानों के लिए बरकत का नुज़ूल फरमाता है। और इसी तरह बहुत सारी इबादत मनकूल है जिनको अगर हम करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरे साल की बरकत हम कुछ ही दिनों में हासिल कर लेते हैं। और इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन रोजे के मुतल्लिक पूछा गया तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत की एक वजह ये बयान फरमाई कि इस दिन मैं पैदा हुआ और इसी दिन मुझे नबूवत अता की गई। तो चलते हैं अपने आज के वजीफे और अमल की तरफ। ये बहुत आसान सा वजीफा और अमल है और हर मेरा भाई बहन आसानी के साथ कर सकता है। ये वजीफा आप पूरे महीने में करें और अगर हो सके तो इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, लेकिन कोशिश करें कि इस वजीफे को, इस अमल को 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस दिन की फजीलत और बरकत बहुत ज्यादा है। इस अमल के बहुत ज्यादा समरात और फवायद है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने से आपके रिज़्क में बेपनाह इजाफा होगा। तो ये 12 रबीउल अव्वल का खास वजीफा है जो कि इमाम काबा रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ है। और ये देखिए कि वो वजीफा जिसको हजरत इमाम काबा रहमतुल्लाह अलैह करें वो कितना अजमत वाला वजीफा होगा और कितना बड़ा होगा और उसकी कितनी बरकत होगी। और वो ये कहते हैं कि मैं साल में यही वजीफा करता हूँ और ये ऐसा वजीफा है कि जिससे अल्लाह ताला आपकी हर जायज हाजत भी पूरी फरमाएगा और इंशाअल्लाह मालो दौलत की भी बरसात होगी और अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देगा। और जो बंदा खुदा न खासा किसी भी परेशानी में मुब्तला हो तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसकी हर किस्म की परेशानी को भी खत्म करेगा और सारा साल इंशाअल्लाह खुशहाली में गुजरेगा। तो अगर खुदा न खास्ता कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी 12 रबीउल अव्वल को ये वजीफा ना पढ़ सके तो वो किसी भी दिन पढ़ ले इस माह मुबारक में।
اور नहायत ही आजमूदा मुजर्रब वजीफा है। रिज्क में इजाफे और हर जायज हाजत के लिए इमाम काबा रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ ये इंतहाई ताकतवर वजीफा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह का बंदे, अल्लाह की बंदी ये करेगा तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको गनी करेंगे। तो हजरत इमाम काबा रहमतुल्लाह अलैह ने वो वजीफा और वो इबादत हमें तालीम फरमाई जो 12 रबीउल अव्वल के लिए मुख्तसर लेकिन जामिया इबादत है और ये बहुत कम वक्त तलब है, और जो अल्लाह का बंदा सदके दिल के साथ करेगा तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया के तमाम मसाइल और परेशानियों से निजात मिलेगी और अल्लाह ताला अपनी रहमत से सभी हाजतों को कबूल करेगा। तो कहना कि हर मेरा भाई, हर मेरी बहन 12 रबीउल अव्वल को जोहर की नमाज पढ़ने के बाद 4 रकत नफल अदा करे, जिसमें सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास यानी कुल शरीफ पढ़नी है। फिर सुन ले कि 4 रकत नफल नमाज अदा करनी है और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है और सलाम फेरने के बाद ये 4 नफल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया करे और उसके बाद फिर दुआ करे अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, पूरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और जो चाहते हैं वो अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ मांग ले। तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल जो मेरा भाई, जो मेरी बहन करेगी सदके दिल के साथ, तो जल्द ही इस अमल की बहारें भी अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखेंगे। और अगर इसका रिजल्ट और असर और ज्यादा तेज चाहते हैं तो इसी तरह 4 नफल अदा करें और उसके बाद उसी जगह पर बैठे बैठे 313 बार दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़े और ये पढ़ने के बाद नफल और दुरूद पाक अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करें और उसके बाद इसका सवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम उम्मत मोहम्मदी और हमसे पहले जो मुसलमान इंसान और जन्नात गुजर गए हैं उन सब की रूह को इसाले सवाब करें और उसके बाद हाथ उठा के अल्लाह ताला से अपने हक में दुआ करे, अपने लिए दुआ करे, अपने लिए दुनिया भी मांगे और अपने लिए आखिरत भी मांगे। हमें दुनिया भी चाहिए और हमें आखिरत भी चाहिए। दुनिया इसलिए कि इस दुनिया में हम अल्लाह को राजी करें, हमारे पास पैसा हो, माल हो, दौलत हो, जो जो हमें चाहिए वो अल्लाह ताला हमें अता करे और हम उसी के साथ अल्लाह को राजी करें। मेरे अजीज भाइयों, एक बात याद रखिएगा कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। अगर किसी के पास अल्लाह ताला रुपया पैसा दे तो अल्लाह ताला की नेमत है, तो उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी आपकी और आखिरत भी यकीनन आपकी होगी। बल्कि ये अमल इतना जबरदस्त है कि इसको आप 12 रबीउल अव्वल के दिन और पूरे महीने में बल्कि पूरी जिंदगी में अगर आप इसको करते रहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सभी हाजात अल्लाह ताला अपनी रहमत से पूरी करेगा। ये इतना जबरदस्त अमल है कि 4 रकात नफल नमाज अदा करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध पाक का तोहफा भेजें। उसके बाद हाथ उठा के सभी को वो इसाले सवाब करें और अल्लाह ताला से अपने हक में जो चाहे मांग ले। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सभी भाइयों सभी बहनों की हाजात को पूरा करे, सभी की खाली झोलियों को अपनी रहमत से अपने करम से भर दे। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। आपके एक शेयर करने से जो कोई पढ़ेगा सुनेगा अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम, दुरूद पाक, उसका अजर उसका सवाब आपको और मुझे हम सबको होगा। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।